ایک لڑکی ہے امرہا، کشمیر کی سبزہ سی، پرستان کے گلاب سی، زمرد جڑے عطردان سی۔ ایک لڑکا ہے آلیان، عرب کے سلطان سا، داستان کے جمال سا، آسمانی فرمان سا۔ عشق ایک داستان ہے، محبت کے اسرار کی، انوار کے قیام کی، امرہا اور آلیان کی۔ امر پریم کا اگر کوئی لاڈ کا نام ہوتا تو وہ سرما کی دھوپ ہوتا۔ سرخاب پر اڑ کر آتی، راج ہنسوں سنگ جھومتی، سنہری زروں سے مرتسم سرما کی دھوپ اس کے سیاہ بالوں سے شناسائی برتتی لاڈ کرنے لگی۔ مراحم دھرتی پر قیام کے لیے اس سے اپنی ابتدا پر مسرور ہوئی۔ سبزی کی وسعت پر فدا ہوتی اس ناظرین کو اس نے سر اٹھا کر دیکھا اور اس مسکراہٹ سے مسکرا دی جو اس کے اختیار میں تو رہا کرتی تھی لیکن استعمال میں نہیں۔ نئے وقتوں کی آمد نے اس کی سماعتوں کے سپرد وہ سرگوشیاں کی جو وہ وقت کی گزرگاہوں سے احتراماً چرا کر لائیں تھیں۔ اس کی وہ جو امرہا ہے، لان کے کونے میں وہ ایسے بیٹھی جیسے زندگی بساط پر وہ ایسا بے نام مہرا ہو جس سے مات دی جائے نہ چال چلی جائے، جو کونوں میں ہی بیٹھتی ہے کیونکہ اسے منظر عام پر آنے سے ڈر لگتا ہے۔ کیوں ڈر لگتا ہے؟ کیونکہ اسے ڈرایا جاتا رہا ہے اور پھر اس کی حیثیت اپنے ہی گھر میں کچھ ایسی سی ہے جو جھاڑو کی ہوتی ہے، ضروری بھی اور چھی گندی بھی۔ ایک طرف بیٹھی دادی زیرلا بڑبڑاتے ہوئے اپنے بالوں کا خود ہی مساج کر رہی ہیں۔ انہوں نے دانیہ سے کہا تھا لیکن اس نے ایسے ظاہر کیا جیسے اس نے تو کچھ سنا ہی نہیں۔ دادی نے کچھ کہا ہی نہیں اور وہ کامل توجہ سے رسالہ پڑھتی رہی، ساتھ مالٹے کی پھانکیں بھی منہ میں ڈالتی رہی، اور یہ سب کرتے وہ کچھ ایسی سی نظر آ رہی تھی کہ جیسے بیچاری لڑکی دانیہ کل ہی تو اپنے ایم فل سے فارغ ہوئی ہے اور آج کچھ ذرا سی دنیا داری سی نظر آ رہی ہے۔ اماں فون پر بات کر رہی ہیں اور حماد کانوں میں ایئر فون لگائے نیا نیا ریپ میوزک سے متعارف ہو رہا ہے کیونکہ اسے چلنے میں خاصی دشواری ہو رہی ہے اور اس کے دونوں ہاتھ ہوا میں ایسے مڑ مڑ کر لہرا رہے ہیں جیسے خدا نہ خواستہ اسے ٹہلتے ٹہلتے مرگی کا دورہ پڑ رہا ہے، اور وہ کونوں میں خود کو چھپانے والی موبائل انٹرنیٹ پر مصروف ہے۔ نہیں، وہ کسی سوشل نیٹ ورکنگ سائٹ پر نہیں ہے، وہ کسی سے چیٹ بھی نہیں کر رہی، ارے نہیں، وہ گوگل امیجز پر مشہور ڈیزائنرز کے کپڑوں کے ڈیزائن بھی نہیں نوٹ کر رہی، وہ تو مانچسٹر یونیورسٹی کے پاکستانی اسٹوڈنٹ سوسائٹی کے گروپ لیڈر کی ای میل پڑھ رہی ہے، اور اس کے ہاتھ پیر ایسے کانپ رہے ہیں جیسے ابھی اسے فریزر سے نکال کر دھوپ میں رکھا گیا ہو، یا جیسے اس کے کان میں کہا گیا ہو کہ جہاں تم بیٹھی ہو ٹھیک وہیں خزانہ دفن ہے، چپکے سے نکال لو، اور اب وہ یہ خزانہ چپکے سے ہی نکالے گی۔ اسے اپنی چیخ دبائے نہیں دب رہی، اور یہ اس نے ہلکی سی چیخ مار ہی دی۔ سب سے پہلے تو دادی نے ہی اپنا ہاتھ روک کر اسے ناگواری سے دیکھا، پھر سوائے دادا کے سب نے اسے کوئی اہمیت نہیں دی اور اپنے انما کو قائم رہنے دیا۔ دادا جو توبۃ النصوح پڑھنے کی کوشش کر رہے تھے اس کے پاس آئے۔ امرہا کیا ہوا؟ پیارے دادا صرف وہی پوچھتے تھے۔ وہ دادا کے کان میں کھسک پھسک کرنے لگی۔ تھوڑی دیر بعد دادا توبۃ النصوح کو سینے سے لگا کر کھڑے ہوئے اور سب کو سنانے جیسے انداز میں کہنے لگے، آملے لینے ہیں منڈی سے، مجھ سے کہاں اٹھائے جائیں گے اتنے؟ امرہا تم آ جاؤ ساتھ، اسی لیے جا رہے ہیں، مل گئے پھر منڈی بند ہو جائے گی یا آگ لگی ہوگی منڈی میں۔ دادی نے اس کے متعلق اپنے خیالات کے اظہار میں دیر نہیں کی۔ ہم دوسرے شہر کی منڈی میں چلے جائیں گے، اگر وہاں بھی آگ لگی ہوئی تو ہمارا انتظار نہ کرنا، ہم شہر منڈی آگ لگا کر آئیں گے۔ شہر کیوں، ملک و ملک کیوں نہیں؟ ہاں بھائی، اب تیار رہنا، سب دنیا میں آگ بھڑکنے والی ہے۔ اب کی کب کی بھڑک چکی؟ دادی نے ایسے کہا جیسے عظیم سچ نہ بولا تو ان پر کفر کا فتویٰ لگا دیا جائے گا۔
बीबी अमराह ने जरा घूरकर दादी को देखा और दादी ने अपना रुख बदल लिया। तो क्या अब ये मुझे भस्म करेगी? उन्होंने खुद पर आयत मुबारका पढ़कर फूंकी। बहुत खौफजदा रहती थी उसकी नजरों से दादी। सब भी रहते थे, तबाह और बर्बादी थी ना वो। नेक शगुनी की दुश्मन, बदशगुनी की दोस्त, क्योंकि ऐन उसकी पैदाइश के दिन बड़े ताया चल बसे थे। फूफी फूफा का कार एक्सीडेंट हो गया। छोटी फूफो के घर शॉर्ट सर्किट से आग लग गई और सारे साजो सामान को निकल गई। चचा की बेटी की मंगनी उस दिन होना थी। ताया की वफात से वो मुलतवी हो गई। बाद में रिश्ता ही खत्म हो गया और मामू के इलेक्ट्रॉनिक्स के स्टोर में पूरे 4 लाख की चोरी हो गई। मामू सदमे से 4 दिन अस्पताल रहे। अमराह से बड़े अली की छत से गिरकर बाएं टांग की हड्डी टूट गई, जिसकी वजह से वो पूरे 2 साल लंगड़ा कर चलता रहा। साथ के घर की मलाइका आपा बेवा हो गई। उनके शौहर का फ्रांस में हार्ट अटैक से इंतकाल हो गया। सामने के घर वालों की बहू के मुर्दा बच्चे की पैदाइश हुई और भी बहुत कुछ। फहरिस्त काफी लंबी थी और दिन ब दिन मसलन लंबी होती जा रही थी। अगर कोई कहता बस अम्मा जी अपने ध्यान में थी, पता ही नहीं चला कब हाशिर अपना हाथ चला बैठा। दादी पूछती क्या दिन था? मंगल का दिन था। आज ही के दिन बलक बलक कर रोया मेरा बेटा। मैं भी धाने मार मार कर रोने लगी। अच्छा मंगल, और तारीख क्या बनी? तारीख यही 2। अच्छा 2 और ऊपर से मंगल। मधिया बेटा, मंगल की 2 को हमें ये वबाल नसीब हुआ था। इस दुनिया पर ये अमरा अजाब बनकर आई थी। हमारे खानदान में तो हर तारीख 2, हर दिन मंगल। क्या करें, गुनाहों के अजाब भी तो भुगतने ही पड़ते हैं ना। अगली बार जनाब हाशिर के हाथ चलने का किस्सा भी उस निजस जन्म पुत्री में शामिल कर दिया जाता। अम्मा भी जरा खाइफ सी रहती उससे। इत्तेफाक से हर साल लगभग उसी दिन मामू के स्टोर पर 3 बार चोरी हो चुकी थी। तंग आकर मामू ने स्टोर बेच दिया और दूसरा कारोबार करने लगे। अम्मा को भूलता ही नहीं था कि कैसे उनके भाई का चमकता दमकता शानदार स्टोर बिक गया और भाई साहब कंगले से हो गए। एक दादा थे जो 5 वक्त नमाज पढ़ते और सिर्फ अल्लाह से डरते, अहादीस पर अमल करने की कोशिश भी करते, जहलाना बातों और ख्यालात से दूर ही रहते, वरना जुमेरात के जुमेरात उनके घर चिराग जलते। 3 या 5 बस ताक जुफ्त नहीं। दादी मरने वालों के नाम मखसूस जगह चिराग रोशन करवाती। लामज़हब हो सबके सब, क्या कभी रोज़ा रसूल पर चिराग चलते देखे हैं? क्यों खिलाफ मजहब ऐसे काम करते हो? दादी हाथ से इशारा करती कि जाएं अपना काम करें। बाबा ने आजम मार्केट में कालीन स्टोर के नए सिरे से आराइश करवाई तो इफ्तिताह के वक्त नारियल फोड़ा। आजम मार्केट के दूसरे मालकान महजूद होते रहे और बाबा सिर्फ इतना ही कहते रहे कि वो फिल्मों में देखते थे तो उन्हें बड़ा अच्छा लगता था। क्या हुआ जो कर लिया, तो तुम सब तो किसी को खुश भी नहीं देख सकते। बाबा ने ऐसे कहा जैसे उनके दरीना ख्वाब की तकमील का मजाक उड़ाया जाना उन्हें पसंद न आया हो। जुमेरात की जुमेरात बिरयानी की देगिन तकसीम करने की रवायत भी बाबा को बहुत अजीज थी। दादा ने एक बार कहा, घर के कामों में मदद के लिए जो आपा आती हैं, उनकी बच्ची के कान का ऑपरेशन होना है। बच्ची बहुत तकलीफ में है, ज्यादा नहीं तो वो 3 जुमेरातों की बिरयानी की देगों के पैसे दे दे। कुछ का इंतजाम मैं कर दूंगा, ऐसे उसका ऑपरेशन हो जाएगा। बहुत बहस हुई। बाबा ने दादा को लादीन करार दे दिया और दादा ने बाबा को बेहिस कह देगिन तो पकती रही। आपा की बेटी का कैसे भी करके दादा ने ऑपरेशन करवा दिया। तो बस ये माहौल था घर का और ये हाल था घर वालों का। गलत बातों को पकड़ कर बैठे रहते। दादा तो बहुत बेजार उकताए उकताए रहते, लेकिन किसी पर बस ही नहीं चलता था। ज्यादातर किताबें पढ़ते रहते या दादा पोती दोनों लाहौर की सड़कों को शर्फ चहल कदमी बख्शते। नहीं मिले ना आमले। जब दोनों खाली हाथ कर आए तो दादी ने तंजन नहीं कहा, बस वो तंजन हो गया। दादी और अमरा दोनों जेरे लब हंसती है। जिस काम से वो गए थे वो हो गया था। हमें तो कहकर गए थे दुनिया में आग भड़का कर ही वापस लौटेंगे,
और अब कैसे वापस आ गए? ये आग लगी है लेकिन हमें ही दिखाई नहीं दे रही। दादा पोती दोनों खामोशी से मंजर से गायब हो गए। ऐसा नहीं था कि एक दादी ही उसे मनहूस मानती थी। दादी और अम्मा की देखा देखी अली, हमाद और दानिया भी दादी के कहे पर यकीन करने लगे थे। कुछ इसलिए भी कि उनकी कभी अमराह से बनी ही नहीं थी और इसलिए भी कि अमराह ने उनसे बनाकर रखी ही नहीं थी। अली की हैवी बाइक के साथ कुछ हो जाता तो उस पर गुस्सा निकाल लेता। वो भी अली को दो सुनाकर छुपकर रोने लगती और खुद को कोसती जाती, मैं मनहूस मारी, मैं मनहूस मारी। दानिया चुपके से कहा करती, मेरे कपड़े लाया करें तो अमराह को ना दिखाया करें। पता नहीं क्यों पर मेरे पहनने से पहले वो देख लेती है तो मुझे जहर लगने लगते हैं। किसी ताज़ा हुई अपनी और अमराह की लड़ाई के बाद वो ऐसे अमराह पर अपना गुस्सा निकालती। अमराह गुस्से में कपड़ों पर स्याही चिकनाई का दाग लगा देती और वहाँ लगाती जहाँ से साफ होकर भी साफ ना होता, और फिर रात को कहीं छुपी बैठी रोती जाती, मैं मनहूस मारी, मैं मनहूस मारी। उस मनहूस मारी को दादा ने जरा संभाला। उन्हीं के कमरे में एक तरफ उसका बेड रखा था। उन्हीं के साथ बाजार जाती, सहेली के घर जाती, उन्हीं से पैसे लेती। दादा ही उसके अम्मा बाबा बहन भाई बन गए। उसकी बातें सुनते, उससे बातें करते, रात रात भर बैठकर उसके फजूल और बेसरोपा शिकवे सुनते। दिन भर उसका किस किसने दिल दुखाया उस पर उसके साथ मिलकर आंसू बहाते। अमराह के साथ बस उसी सब में मसरूफ रहते। एक रात उसने बाबा को अम्मा से कहते सुन लिया, स्टोर पर 4 लाख का लकड़ी का काम करवाने जा रहा हूँ, किसी को बताना नहीं, नजर लग जाती है, खासकर अपनी अमराह को। वो रात भर रोती रही, हिचकियाँ लेती गई, बदुआएं देती गई कि वो मर जाए या लकड़ी के साजा सामान को आग लग जाए। लेकिन ना वो मरी ना सामान को आग लगी, बल्कि बाबा के 4 लाख रुपए में से पूरे 1.5 लाख कम हो गए। छोटी फूफो आई और अपनी कोई जरूरत बताकर पैसे ले गई। बाबा अम्मा से चिढ़ गए, कहा था ना किसी को मत बताना। अब हो गया काम, सारा अजाब अमराह पे ना आ जाए। दादा ने अपने दोस्त से लेकर दिए पैसे और फिर कहीं जाकर नारियल फूटा स्टोर के आगे। तो ये हैसियत है हमारी अमराह की कि पैदाइश से लेकर बड़े होने तक ऐसे हजारों बार हुआ। वो बोल लेती, बहन भाइयों से लड़ भी लेती, लेकिन रात रात भर रोती भी रहती। उसका जी चाहता कहीं भाग जाए, छुप जाए, गुम हो जाए कि किसी को याद न रहे कि उसकी पैदाइश की खबर सुनते ही दादी के दाएं पैर में मोच आ गई थी। बादशाह अम्मा के कमर दर्द ने कभी अम्मा को सुकून का सांस न लेने दिया। दानिया, हमाद, अली कभी जलकर, कभी मजाकन और कभी सिर्फ उसे रोते देखने के लिए उसे उसकी नहूसत के किस्से सुनाते रहते कि वो भूल न जाए कि वो कौन है। स्कूल में एक बार टीचर की कुर्सी का पाया जो अरसे से टूट जाने के करीब था, टूट गया और टीचर जी धड़ाम से नीचे गिरी तो वो फौरन खड़े होकर रोने लगी और उसने हाथ जोड़ दिए। टीचर, मैंने कुछ नहीं किया, ये कुर्सी खुद ब खुद टूटी है, मैं सच बोल रही हूँ। टीचर कभी सर पर हाथ रख कर कह देती कि सर में दर्द है तो वो सहम जाती। मैंने आपके सर को नहीं देखा, सच बिल्कुल नहीं देखा। खानदान की तकरीबात में वो इन्हीं कारनामों की वजह से जाती नहीं थी जो सारे खानदान में ऐसे मशहूर थे, जैसे शालों में कश्मीरी शाल और मेवों में चलगोजे। एक बार वो गई तो बारात जैसे दिन 2 बजे दूसरे शहर से आना था, आई ही नहीं। शाम से रात हो गई। उनकी गाड़ियाँ मोटर वे पर खड़ी थी। दुल्हा बारातियों के बगैर आने के लिए तैयार नहीं था। जब तक लाहौर से नई कारें भेजी गईं और वह सब उसमें बैठकर आए, रात के 12 बज चुके थे। सब मेहमान जा चुके थे और सिर्फ करीबी ही अजीज मौजूद थे। वो भी दादा के साथ चुपके से घर वापस आ गई और अपने नए डिजाइनर ड्रेस को आग लगा दी। उसके सब कजिन्स उसके गिर्द घेरा बनाए उसका मजाक उड़ाने में मसरूफ थे। नाना, जरा पूछिए खाना जल गया या बच गया? अमराह आई है ना आज, बिजली के कनेक्शन भी चेक करवा लीजिएगा, शॉर्ट सर्किट से आग न भड़क उठे। किसी एक ने कहा, मैं तो दुआ करती हूँ कि दुल्हा भाई खैरियत से आ जाए।
खूबसूरत नजर आने की कोशिश करती खालाजाद बोली, मुझे तो दुल्हन की फिक्र है। अफवाह उड़ी थी कि 2 लाख का लहंगा जलते जलते बचा है। अदाए नाज़नीन अपनाते दूसरी खालाजाद ने भी बोलने में देर नहीं की। लहंगा तो बच गया, लेकिन दुल्हन के बाल जल गए। वैसे आयरन मशीन बाल जलाती तो नहीं, लेकिन कुछ भी हो सकता है आज तो। कोई तीसरा बोला, हम सब तो मजाक कर रहे थे, अमरा तो संजीदा ही हो गई। वो रोने जैसी हो जाती तो कोई कह देता। 3 घंटे बाद उसका खालाजाद तने हुए असाब के साथ ऐसे आया जैसे किसी को फांसी घाट ले जाने आया हो। 4-5 घंटे से पहले बारात नहीं आएगी, सब अमरा से माजरत करो। उसने हमारी माजरत कबूल कर ली तो शायद बारात जल्दी आ जाए। बकवास बंद करो सब अपनी। वो इतनी जोर से चलाई कि उन 10-12 का ग्रुप सुन हो गया। मैं तुम्हारा मुंह तोड़ दूंगी हसन, उसने बामुश्किल खुद को रोने से रोककर चिल्लाया। मुंह तो तुम्हारा तोड़ा जाना चाहिए जो अपनी सारी नहुसत लेकर मेरी बहन की शादी खराब करने आ गई। अमरा का जी चाहा वो सारे पंडाल में आग भड़का दे। काश वाकई शॉर्ट सर्किट हो जाए और सारे रोशन कमके में बुझ जाएं, ताकि उसके धाड़े मार मार कर रोते तारीख चेहरे और कपकपाते वजूद को कोई ना देख सके। वो कब से सबके मजाक में छुपे तंजों को झील रखी थी। वजू करने के बाद मस्जिद जाने से पहले खुद को आईने के सामने खड़ा करके जरूर देखना, शायद दोबारा कभी मुझे ये सब कहते तुम्हारी जबान लड़खड़ा जाए और तुम्हें ये बात समझ में आ जाए कि कुछ भी बर्बाद और आबाद करने की ताकत इंसान के हाथ में है, न इख्तियार में। हुक्म कुन और अमल फयाकुन रब की खूबी है, उसके बंदों की नहीं। बामुश्किल खुद को रोने से बचाते उसने 5 वक्त के नमाजी हसन से कहा और बाकी सब की तरफ अफसोस से देखा। दादा को लेकर वो चुपके से घर आ गई। उसकी सगी खालाजाद की शादी थी। उसके दिल में भी अरमान थे शादी को लेकर। उसने खास उस शादी के लिए बहुत तैयारियां की थी, लेकिन सब न सिर्फ बेकार गया बल्कि उसे दुख देकर गया। उसने एक सफेद कागज पर मैं कभी तकरीब में नहीं जाऊंगी, कभी भी नहीं, वादा लिखकर अपने अलमारी की अंदरूनी दीवार पर चिपका दिया। जब कहीं उसका कहीं जाने को दिल चाहता, वो अलमारी खोलकर अपने वादे को याद कर लेती। ये सब वो करती तो गई, लेकिन बहुत अकेली भी होती गई। वो आसानी से रो पड़ती, उसे आसानी से रुलाया जा सकता। जैसे कि कोयटा वाले मामू सामने कभी एक बार आ जाते तो लहाफ में दबक कर कॉफी का बड़ा मग पीते हुए कहते, बुलाओ जरा अमरा को, उससे रुलाए। वो ना जाती तो मामू खींच खांच कर ले जाते। हंस हंस कर सब लोट पोट होते। वो धारे मार मार कर रो रही होती और मामू उसकी नहुसत का एक एक किस्सा हवाला जात के साथ सुनाए जाते। अम्मा उसे डांटती, मजाक कर रही हैं मामू, अमरा क्यों ऐसे धारे मार रही हो। दादा आते, सबको डांट कर उसे ले जाते। जाहिल लोग हैं अमरा ये, इन पर तवज्जो न दिया करो। वो कौन सी आलम थी जो खुद को समझा लेती, नो उम्र, दुखी और खुद को खुद ही मनहूस समझने वाली, बस रो देने वाली लड़की ही तो थी। और फिर हर बार तो खुद को फलसफों से मुतमईन नहीं किया जा सकता था। सब जाहिल हैं, पुरसुकून हो जाओ, सब पागल हैं। हाँ ये ठीक है, ऐसा सोचा जा सकता है, कहा जा सकता है, लेकिन ऐसा ठीक ठीक हो नहीं पाता। रिजल्ट अगर 100% होता भी तो अगली बार 0 जरूर हो जाता है। वो जितना खुद को ये सब जाहिल हैं कहकर बहलाती, उतना ही अगली बार उन सब जाहिलों की बातों पर हिचकियों से रोती। दादा की बातें उसे थपक थपक कर सुलाती थी तो उसे नींद में वो उन सब बातों की बात पर कुढ़ाती थी। अमरा दुखियों में सबसे दुखी, अमरा तन्हाओं में सबसे तन्हा। दादा गवर्नमेंट पंजाब पब्लिक लाइब्रेरी में लाइब्रेरियन थे। स्कूल की छुट्टियों में वो सारा दिन पंजाब लाइब्रेरी में घूमती फिरती रहती थी। वैसे भी दादा उसे कम से कम घर में रहने देते थे। वो स्कूल से पैदल चलकर लाइब्रेरी आ जाती, दोनों दोपहर का खाना वहीं खाते। उसी मुलाजमत के दौरान दादा हजूर ने हजारों किताबें पढ़ी थी और इसीलिए वो जुमेरात को मरने वालों के नाम के दिए नहीं जलाते थे। शाम को दोनों चहलकदमी करते,
लाहौर माल रोड की लंबी सड़कों से होते, सर्दी गर्मी भुने चनों और राख पके छिली खाते रात गए घर आते। अमराह का तो दिल चाहता कि रात को कभी भी घर न जाए और भले से माल रोड के फुटपाथ पर सो जाए। घर पर नजर आते ही दादा आज सूरत कहते, लो आ गई जेल। पागल हो गए हो तुम तो किताबें पढ़ पढ़ कर। ढंग की नौकरी मिल जाती तो अकल तो न जाती। दादी सुन लेती तो कहती, दादा को ढंग की नौकरी न मिली लेकिन ढंग से अकल जरूर मिल गई। बाबा ने अपने वक्त की 10 को भी जैसे अपने स्टोर पर रख कर बेच दिया कालीनों के साथ। पता ही नहीं चलता था कि 10 जमातें पढ़े हैं या 10 तक गिनती। अली बड़ा था और कमाल का बड़ा था। हर जमात में सीनियर ही रहता, 2 साल जरूर ही लगाता। फिर हमाद था, उसे दुनिया भर के गाने वालों, नाचने वालों, उन्हें नचाने वालों के नाम, घर, शहर, कौमियत, मजहब, शादी, बच्चों, अफेयर्स के बारे में तो मालूम था, लेकिन ये नहीं कि एफए के बाद की डिग्री को क्या कहते हैं और उसे पास कैसे करते हैं। कितना चाहा दादा ने कि एक इंजीनियर बन जाए या कम से कम दयाल सिंह कॉलेज में लेक्चरार, वरना एक अस्पताल में डॉक्टर और एक पाक आर्मी में कप्तान, लेकिन दादा के सोचने से तो कुछ नहीं होता ना। वैसे उनके कहने से भी कुछ नहीं हुआ। फिर अमराह का नंबर था, कम वो भी नहीं थी, और क्योंकि बेचारी सी थी तो हर वक्त रोती रहती। बड़ी मुश्किल से दादा ने उसे 8 जमातें पास करवाईं। ताज़ा हुए किसी वाक़ये पर रोने के दौरान उसने पढ़ाई छोड़ देने का फैसला कर लिया और अमल भी। सारा दिन दादा के साथ लाइब्रेरी रहती। दादा ने मेहनत की, अमराह मैट्रिक कर लो। इससे क्या होगा, तालीम से क्या नहीं हो सकता, सब मुझे पसंद करने लगेंगे क्या। इस्तेज़ाई अंदाज, तुम्हें ये फिक्र क्यों है कि सब तुम्हें पसंद करने लगे। तालीम तुम्हें अपने लिए हासिल करनी है, अपनी जिंदगी को तामीर करने के लिए। मेरी जिंदगी मेरी नहुसत ने काफी अच्छी तामीर कर दी है। अब तंज़िया अंदाज, तुम्हें इतना कमजोर नहीं होना चाहिए कि तुम ऐसे हथियार फेंक दो। मुआशरा, माहौल या लोग कैसे भी हों, हमें अपने रास्ते बनाने नहीं छोड़ देने चाहिए और उन रास्तों पर रोशनी के इंतजामात में लगे रहना चाहिए। ऐसी बातें किताबों में ही अच्छी लगती हैं दादा। किताबें नाजा हैं ऐसी बातों की मलकियत पर, उन पर अमल करके हमें भी नाजा होना चाहिए। अमराह, मैं जो कहती हूँ वो आप समझते नहीं। कितनी बार कह चुकी हूँ, भाग जाते हैं कहीं दूर, बहुत दूर। वो हर बात को इसी एक बात पर खत्म करती, उसे बस किसी भी तरह से अपने माहौल से दूर जाना था, जहाँ रोना ही पड़े तो उसकी तमहीद कुछ और हुआ करे, जहाँ उदासी आया ही करे तो अपने साथ मुसरत को छुपा लाया करे, जहाँ सुबह हो, शाम हो, फिर रात हो, लेकिन आह न हो। दादा के पास थोड़े से जो पैसे थे उनसे अपने दोस्त के घर बलोचिस्तान भगा ले गए। 10 दिन रह कर आए। खानदान में कहीं तो वो जाती नहीं थी, वहाँ बहुत खुश रही। फिर दादा से कहने लगी, दादा आप दुबई चले जाएं, फिर मुझे भी वहीं बुला लेना, बड़े खुश रहेंगे हम दोनों। दादा इस उम्र में क्या दुबई जाते, हाँ फिर भी उससे वादा कर लिया, मैट्रिक कर लो फिर चला जाऊंगा। उसने दुबई के लिए मैट्रिक कर लिया, खूब जी जान लगा कर किया, और इतनी जान लगाने पर भी कुछ ज्यादा बड़ा धमाका न कर सकी। यही आम हुई 2nd डिवीजन, जो हर कसो नाकिस के हाथ आ ही जाती। इन्हीं दिनों नया वाकया हुआ था कि बाबा का हाथ चल गया। दुनिया अपनी फितरत से मजबूर उस पर तंज करने लगी तो वो आगे से जवाब देने लगी, तो बाबा ने गुस्से से जला हुआ हाथ ही उसके गाल पर थप्पड़ बनाकर मार दिया, और मजीद गुस्से से उसने अपना सर दीवार में जोर से दे मारा। सर से खून निकला, सर में बहुत दर्द हुआ, और उस दर्द और खून को भुलाकर वो बाबा के थप्पड़ को लेकर रोती रही, रात के पहले पहरे से आखिरी पहर तक। फिर अपने स्कूल बैग में चंद नए कपड़े रखकर घर से निकल गई। चलती गई, घर की सड़क को पार किया, बड़ी सड़क तक आई, उसे भी पार कर गई। चलती गई, हद तो ये कि पहली सड़क पर यहाँ वहाँ फिरते आवारा गंदे संदे कुत्तों से बिल्कुल नहीं डरी। आंखों में अश्क लिए, कंधे पर स्कूल बैग लटकाए, ऐसे चलती जा रही थी जैसे खुदा न ख्वास्ता दुनिया में अकेली हो। कुछ दूर आगे जाकर समझ में न आया कि अब कहाँ जाए,
तो सड़क के किनारे फुटपाथ पर बैठकर रोने लगी। थका डाला तुमने मुझे अमरहा। दादा उसी फुटपाथ पर उसके साथ बैठ गए। हाथ में पानी की बोतल थी। पहले खुद पानी पिया, फिर उसे पिलाया। मैंने घर छोड़ दिया है। पानी पीकर वो चिल्लाई, एक दिन तो तुम्हें वो घर छोड़ना ही है। वो तुम्हारा घर है भी नहीं मेरे बच्चे। जाते क्यों नहीं हैं आप दुबई? कर लिया है ना मैंने मैट्रिक। दादा गड़बड़ा गए। मैं बूढ़ा बीमार शुमार रहने वाला बंदा अब कहाँ जाऊंगा मुल्क से बाहर, वो भी काम करने। खुद सोच बच्चे, कितना बुरा हो गया हूँ मैं, और बहरा भी तो हो रहा हूँ। तो वादा क्यों किया था? बाबा के मारे थप्पड़ को भूलकर वो उस बात पर हिचकियों से रोने लगी कि दादा ने वादा पूरा नहीं किया। दादा बहुत देर चुप ही रहे। नो उम्री, फिर अमरहा जैसा दुखी दिल, आपको झूठी तसल्ली उसे नहीं दी जा सकती थी। तुम क्यों नहीं चली जाती अमरहा? कहाँ? एक बड़ी सी हिचकी लेकर उसने कंधे से स्कूल बैग उतारा। दुबई, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, फ्रांस। मैं अमेरिका, फ्रांस। वो और धारे मार मार कर रोने लगी कि दादा को कैसे कैसे लतीफ़े याद आ रहे हैं, उसका मजाक उड़ा रहे हैं। ये कोई वक्त है मजाक करने का, वो भी ऐसा भयानक। हाँ ना, मिर्जा कमाल के नवासी ने एफएससी में टॉप किया है इस साल। उसे स्कॉलरशिप मिला है। 2 दिन हुए वो कनाडा चली भी गई। अमरहा, तुम भी एफएससी में टॉप कर लो। मैं? फिर वही भयानक मजाक का अंदाज। उफ, ये दादा। हाँ अमरहा बच्चे, टॉप करो और चले जाओ। मिर्जा कमाल के नवासी 7 साल बाद आएगी वापस, बल्कि समझो आएगी ही नहीं। पढ़ाई खत्म होने के बाद उसे कनाडा में ही 3 साल की लाजमी सर्विस करनी होगी। यूँ हो गए 10 साल। 10 साल वो भी कनाडा में। वहाँ 20-25 लाख लगा कर जाया जाता है। वो मुफ्त चली गई है। देख लो अमरहा, तालीम के कितने फायदे हैं। आप खुद को मनवा लो तो दुनिया आपको हाथों हाथ लेती है। रात के आखिरी पहर सड़क के किनारे बैठे दादा उसे फलसफा के मुअल्लिम अव्वल अरस्तू से कम नहीं लग रहे थे, जो सिकंदर आजम को तारीखी फातिहों की फतूहात बड़े सलीके से समझा रहा था। और फिर सिकंदर आजम भी तो फातिहा रहा था। और यूं उसने बहुत देर से दादा के साथ जाकर कॉलेज में दाखिला लिया। रात दिन पढ़ाई, बस पढ़ाई। टॉप करना उसने खुद पर लाजिम कर लिया, बल्कि फर्ज अव्वल मान लिया। उसे इतना यकीन था खुद पर कि वो खुद ही सब दोस्तों और हम जमातों को बताने लगी, मुझे तो कनाडा जाना है, पूरे 10 साल रहूंगी वहाँ। उसका अंदाज ऐसे हो जाता जैसे वो किसी दूसरी दुनिया का बाशिंदा हो और जो कहता हो मुझे तो वापस अपनी दुनिया में जाना है। यहाँ तो हादसाती तौर पर आ गया, वहाँ बस कभी कभी किस्मत ऐसे ही खराब हो जाती है। डॉक्टर बन जाऊंगी, मजे से अपनी जिंदगी गुजारूंगी। ये कहते वो ऐसी शहजादी बन जाती जो बूढ़ी मलका के मरते ही खुद मलका बन जाने वाली हो। और अब बस उसने तो बूढ़ी मलका के दिन गिनने भी शुरू कर दिए हों। हाँ, मेरे फ्यूचर प्लान्स में हमेशा से यही शामिल था। मुझे अपनी जिंदगी किसी यूरोपियन कंट्री में ही गुजारनी थी। यूरोप को वो सिर्फ कनाडा तक जानती और मानती थी, और यूरोप ऐसे कह रही थी जैसे सारी दुनिया को घूम फिर कर देखभाल कर उसने 7 बड़े आज़मों में से एक यूरोप का इंतखाब किया हो। बस किसी तरह से ये 2 साल गुजर जाएं, इम्तिहानात हों और मैं जाऊं। सूरज को इतनी जल्दी दिन लाने और रात को चांद सितारे लाने की नहीं होती होगी जितनी उसे यहाँ से भाग जाने की थी। उन 2 सालों में वो बहुत खुश रही। उसने कनाडा की इतनी मालूमात इकट्ठी कर ली कि खुद कैनेडियन भी वो सब नहीं जानते होंगे जो वो जानने लग गई थी। दादा ने उसे वो सारी किताबें ला दी जिनमें लफ्ज़ कनाडा किसी न किसी तरह से मौजूद था, बल्कि उसने वो किताबें दादा से मंगवा ली। और फिर रिजल्ट आ गया, टॉप भी हो गया, लेकिन अफसोस किसी और का, वो A+ भी नहीं ले सकी। रो रो कर उसने अपना हशर कर लिया। दादा नजरें चुराए चुराए छुपते से फिरते जैसे इम्तिहानात उन्होंने दिए थे और ठीक से उन्होंने ही मेहनत नहीं की और फेल हो गए। 3 जगह अप्लाई किया स्कॉलरशिप के लिए, लेकिन जहाँ AA+ वालों की भरमार हो
वहाँ खाली खुली ये ग्रेड को कौन पूछता है। दादा को उन दिनों मालूम हुआ कि मुल्क में कितनी बड़ी तादाद लायक तलबा की है। जहाँ जहाँ वो उसका फॉर्म जमा करवाने गए थे, वहाँ मौजूद गमे गफीर देखकर उन्हें खुशी तो होती, लेकिन अपनी अमराह के लिए अफसोस भी होता। वो उसी वक्त समझ गए कि उसे मुश्किल से ही कोई स्कॉलरशिप मिलेगा, और वही हुआ। उसे माजद के 3 ऑफिशियल लेटर आके स्कॉलरशिप देने वाले इदारों की तरफ से एडमिशन फॉर्म न आए। घर वाले ला इन रहे कि दादा पोती के दरमियान क्या चल रहा है। अमराह का बुखार उतरने का नाम क्यों नहीं ले रहा। अमराह और दादा में बातचीत क्यों बंद है। अमराह अब दादाजी क्यों नहीं कहती फिरती। साथ उसकी हम जमातों और दोस्तों के फ़ोन आते रहे, कब जा रही हो कनाडा, देखो मिलकर जाना। हिम्मत है तुम्हारी अमराह जो इतनी दूर जा रही हो पढ़ने। मैं तो सोच कर ही मरने लगती हूँ। उसने 2 सालों में इतने यकीन से अपने जाने के बारे में कहा था कि सबको कामिल यकीन था कि अब बस वो कनाडा गई। वो सब तंज नहीं करती थी, पर अमराह को तो तंज ही लग रहे थे ना।